وہ ہے سچی توبہ. کیا ہے؟ سچی. پچھلے آنا بولنا سچی توبہ. بائبل مقدس کے اندر خداوند پاک خدا بیان کرتے ہیں کہ جب یونا اس بات کو پیشتر کے یہ لکھتا یا پیشتر یہ بیان کرتا، پیشتر کے یہ بات قوموں تک، قبیلوں تک، امتوں تک، مذاہبوں تک اور تمام لوگوں تک پہنچتی، تو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ نینوا کے اندر یونا 2 دفعہ داخل ہوتا ہے. ایک دفعہ لکھا ہے پہلے جاتا ہے لیکن پھر یہ باغی ہو جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے، بائبل بیان کرتی ہے واستو ہم وعدہ کر کے ہم جب باغی ہو جاتے ہیں تو سیم اس نے ایسا ہی کیا. اور تاریخ اور بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب پہلے اس کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ تو نینوا کو جائے گا، یہ اپنا جہاز کا ٹکٹ خرید کر ایسا تفتیش کو جاتا ہے، اور تفتیش کو جب جاتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے اس کے سب سے ایک بڑا پھنچال آتا ہے، ایک بڑا سمندر کے اندر ایک بڑا طوفان برپا ہو جاتا ہے. تاریخ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے لوگوں نے اپنا سامان اٹھانا جہاز سے ممکن سمجھا تاکہ جہاز ہلکا ہو جائے. ایسا ہی ہے؟ ہاں یا نا؟ اسی بولیا کرو. آپ صحیح نہیں، آپ صحیح ہیں. اونچی بولنا ہے. آپ کی ہیں صحیح ہیں، کی ہیں اونچی بولو. ہاں یا نا؟ اور پھر بائبل کے اندر لکھا کہ جب پہلی دفعہ جاتا ہے، پھر میں اس کا انٹروڈکشن آپ کو کروا دوں کہ یہ تھا کون. نینوا جو شہر جو تھا، یہ نینوا قدیم شہروں میں سے ایک شہر تھا، اور اس کا بانی حضرت نوح کا پڑپوتا نمرود تھا. اس کا بانی جو ہم منادی کر رہا تھا، منادی سمرات آرایا ایسا چلا رہا تھا، وہاں جو منسٹر جو تھا یہ حضرت نوح کا پڑپوتا. نوح کا بولو، نوح کا پڑپوتا، اس کا نام تھا نمرود. اور یہ وہی تھا، یہ علاقہ سرا کا علاقہ تھا، یہ ڈیزرٹ ایریا تھا، کوستانی علاقہ تھا. وہاں بائبل میں لکھا ہے، بائبل بتاتی اس کی رات جو تھی یہ 36 گھنٹے کی تھی. کتنے کی تھی؟ 36 گھنٹے کی تھی اس کی رات. لیکن یہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کا پلان بدل چکا تھا. اور یہ خدا بائبل مقدس میں لکھا، خدا فرماتے ہیں میرے خیال تمہارے خیال نہیں ہیں، میرے ارادے تمہارے ارادے نہیں ہیں. خدا کچھ کہتا ہے بلکہ ہم کچھ کہتے ہیں. لیکن بائبل میں لکھا ہے جب یہ وہاں جاتا، لیکن میں کوئی اور بات بتاؤں، نینوا 40 کلومیٹر پر مشتمل تھا. 40 کلومیٹر پر یہ پھیلا ہوا تھا. سمجھ گئے کیا؟ کلومیٹر 40 کلومیٹر پر یہ پھیلا ہوا تھا. اور یہ آج کل عراق کے اندر موجود ہے، اور یہ تھا بھی وہاں اور ہے بھی وہاں. لیکن یونا جو ہے، یونا کو عبرانی کے اندر جو ہے اس کا میننگ سے بنتا ہے فاختہ یا کبوتری. فاختہ یا فاختہ یا فاختہ بلا کنوانے کو بتا سکتا؟ فاختہ کگی کسے کہتے؟ بولو تو صحیح. آپ پات نہیں کگی ہے؟ کگی آنے جن کے لیے نہ ٹھا مار دیں ہے فاختہ یا کبوتری. لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے جب یہ شخص وہاں جاتا ہے، وہاں ایک سمندر کے اندر ایک بہت بڑا ایک طوفان برپا ہوتا ہے. یہ تھا یونا کے لیے، یہ تھا اس کی بھلائی کے لیے، یہ تھا یونا کے نبی کے لیے، یہ تھا یونا کے توبہ کے لیے، یہ تھا یونا کے نینوا کو بتانے کے لیے کہ تم توبہ کرو. اور تاریخ اور بائبل میں لکھا ہے خدا نے ایک مچھلی کو قائم کیا. کس کو قائم کیا؟ ادھر نہ پہ جو یار ہوتا تو مینوں نہیں لا بجا ہے تاڑی کو گل کرنے والی ایتھے بیٹھا ہوا سامنے. خدا کے کلام بھائی لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، صرف جب تک آپ فیس ٹو فیس نہیں سنیں گے آپ کو سمجھ کے آئے گی کچھ. بڑا ایک طوفان برپا ہوا. جب طوفان برپا ہوا، طوفان برپا ہونے کے بعد خدا نے ایک مچھلی کو بھیجا، اور مچھلی جو تھی اس کا نام تھا ڈالفن. کیا تھا؟ یہ 1 گھنٹے میں 150 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. 1 گھنٹے کے اندر کتنا کرتی ہے؟ 150 کلومیٹر سفر طے کر دیا. لیکن بائبل میں
और कुरा यूना के नाम का निकला। उन्होंने 2 बारी कुरा डालिया। कुरा के नाम का निकलिया, के नाम निकलिया। जब यूना के नाम का निकलता है कुरा, तो कुरे के बाद उन्होंने कहा जनाब हम क्या करें? उन्होंने कहा ये गुनाह हमारी औलाद पर और हमारी गर्दन पर नहीं हो। उन्होंने उठाला और उठाने के बाद देखिए क्या कमाल की बात है जनाब, देखिए क्या मौजूदात की बात है, देखिए क्या मिरेकल की बात है, क्या हैरान कुन बात है, क्या मजेदार बात है, क्या टेस्ट बात है। एक मछली को हुक्म किया खुदा ने, हालेलुया। उसका नाम क्या था भाई बताएंगे क्या? वेरी गुड। उसका नाम क्या था? 1 घंटे के अंदर 150 किलोमीटर का सफर करती है। कितना? 150 किलोमीटर का ये सफर करती। 72 घंटे नबी द मैन ऑफ गॉड उसके पेट में रहा। मैं कहता हूं जब मछली ने समझा होगा कि मेरी खुराक है, वैसे खाओगी, वैसे पी लोगी, वैसे निकलोगी, लेकिन उससे ये नहीं पता था ये मर्द खुदा है, ये मेरे पेट के अंदर है। एक मिनट, ये मेरे पेट के अंदर है और जो इसके अंदर है वो खुदा का कलाम है। देखिए पहले सी कनाल अग्गा लग गई है, की लग गया? अग्गा लग गया, क्योंकि मछली 150 किलोमीटर 1 घंटे में करती। जैसी मैं एक और बात बताता हूं, मैं जब पढ़ रहा था, जब इसको सोच रहा था, मछली के अंदर रेस्ट हाउस खुदा ने बना दिया नबी के लिए। उन ताड़ी मारे ठोक नबी और फिश का ये ना फिश कंडे भी खाली देने। हाँ कंडे की करी देने, कंडे की करी देने, कितने खरीदने। लेकिन मैं बताना चाहता हूं नबी बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब नबी उसके अंदर जाता उसको कोई कंडा नहीं लगता। लगता है या नहीं? नबी को कंडा इसलिए नहीं लगता, नबी के अंदर खुदा का कलाम था। खुदा अपने कलाम को कभी जाया नहीं होने देता। खुदा लिखा वो अपने कलाम को नासर फरमाकर शिफा देता है। वो अपने कलाम की कुदरत से बड़े बड़े मिरेकल करता है। और जैसी मछली ने मुंह खोला और सीधा नबी उसके अंदर गया और वहां एक रेस्ट हाउस बना दिया खुदा ने। ना मेरा बंदा मरे, सांस भी ले, ऑक्सीजन भी ले, सब कुछ मुमकिन होगा। था या ना? लेकिन किसके लिए था? मेरे लोग बच जाए। आमीन, आमीन। छोटा है ठीक है। जैसी तो ये कितने कहते रहा? कितने? 72। कितने? 72 को 150 से ज़रब देते 10,800 किलोमीटर बनता है। कराची ना कितने ज्यादा? 10,800 किलोमीटर इससे सफर किया। लेकिन मैं ईमान रखता हूं इस बात पे, मैं यकीन करता हूं इस बात पे, मैं बिलीव करता हूं कि जब नबी इसके अंदर था, ये नबी के अंदर क्या था? नबी मछली के पेट के अंदर था, तो नबी के पेट के अंदर क्या था? नान, गोश्त, पिज्जा, पीस, क्या था? नबी के पेट के अंदर क्या था? है चने वाले चावल है? की था नबी के अंदर? वो बोलो तो सही ना, क्या था? बाइबल उठा के बोले ऐसी दूसरे शर्मिंदगी है। खाओ क्या? आंखों ऐसी, आंखों ऐसी। लव यू। उससे कोई ये था, उसका नबी के अंदर ये था। और जब नबी जाता ही है तो मैं ईमान रखता हूं उससे स्पीड बढ़ा दी होगी। और बढ़ाने के बाद उसके कब नन्नवा आए नबी मेरे पेट से डिलीवर हो जाते हैं। एक और बात आप सबों के लिए, नन्नवा ने लोग हैं जिनसे मनने वाले जी भी आपा नहीं मानते। बाइबल मां खा के आख देना, था के जाना बाइबल आपा नहीं लोगे। शर्म आती है। को पूछेगा क्या है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ये है। मैं बताना चाहता हूं अगर नबी के अंदर कलाम ना होता तो किसी मगरमच्छ ने खा लेना चाहिए। नहीं बात समझ में आई? अरे अच्छा, मगरमच्छ कौन इससे समुद्र से? और भी मछलियां थी, मगरमच्छ बड़े बड़े जहाज। मैं देख रहा था वीडियो, वो हेलीकॉप्टर ही खा गया, हेलीकॉप्टर खा गया पूरे का पूरे ड्रल।
उससे जैसे गुजर रहा था वो निकलने के बाद उसे दबोचे के बाद हेलीकॉप्टर ही हजम कार मारा। लेकिन उसको मगरमच्छ ने क्यों नहीं खाया? क्योंकि उसके पास दुनिया मगरमच्छ ताड़े लाके क्यों नहीं होता, पता बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी। हालेलुया हालेलुया। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा अच्छा ये वहां जाता है और जो लोग नैनवा के थे वो मछली के देवता की परस्तिश करते थे। खुदा ने इसलिए नबी को मछली के पेट से भेजा। खुदा मछली नु खुदा खादम नु हटा के भी लेके जा, हवा चुड़ हटा के भी लेके जा सकता। एक नबी उड़न वाला भी आसी, पता केड़ा? पता केड़ा है? वेरी गुड, जोरदार तालियां बाजी के लिए। वेरी गुड। फिलिपस था, फिलिपस उठने वाला था, फिलिपस उठ जाता था, लेकिन ये उठकर भी जा सकता था। अगर उठकर जाता तो लोगों ने तौबा नहीं करनी थी, लोगों ने इकरार नहीं करना था, लोगों ने इज़हार नहीं करना था, लोगों ने रात पे नहीं बैठना था, लोगों ने टाट पर नहीं बैठना था, लोगों ने खाक में नहीं झुकना था। अगर आज परिवार कर को रहा सारे लोग रोज़े में आ जाओ, बिजनेस नहीं है रोज़े में आ जाओ, औलाद नहीं है रोज़े में आ जाओ, और बीमारी है रोज़े में आ जाओ, सारे का सारा परिवार जब रोज़े में आ जाएगा फिर आसमान खुलेगा, आसमान खुलेगा, फिर बरकतें नाज़िल होंगी। रोज़ा ताकत है, पंच है इब्लीस के मुंह पे मारने का। अब एक बंदा भी ना था, आप पत्र रोजा नहीं रखना। मैं क्या क्यों? मैं अपनी जान वाका का खा पियो राश का। मैं क्या वाह क्या बात है, क्या डायलॉग है तेरा। कहता मेरी जान खा पी ऐश कर। मैं क्या याद है तुझे? बस आज सुनाऊंगा सही जे तो दी मेरी मुलाकात हुई, मेरी जान खा पी। मैंने क्या फाइट मैं बताना चाहता हूं, अगर यूना उठकर जाता वो लोगों ने तौबा नहीं करनी थी। खुदा सब कुछ जानता है, खुदा दिलों सोचो ख्यालों इरादों ख्वाबों रोया बातों सब कुछ जानता है। खुदा ने कहा मैं इसको मछली के पेट से निकालूंगा। और लोग वहां ऐसा नहाने के लिए आए थे, बड़े बड़े लोग। अगर आप कराची में जाते तो बड़े लोग समुद्र पे आते या नहीं आते? फिरने ढूंढने के लिए आते। चलो भी इंजन मेरा भी कितने इत्तेफाक होया जान, पर मैं तो भाई बेच नहीं गया, मैं वापसी पंजाब जाना। लेकिन वहां लोग जब जाते हैं तो ऐसा समंदर के ऊपर गए तो मछली बड़ी स्पीड से आई, और आने के बाद उससे ऐसा किया, बड़ी स्ट्रगल की बात है। और जैसे जब मैं मुंह खोला और जो नबी जो था वो चप्पल लगा के किनारे में आया और लोगों ने ऐसा सजदा किया, कहा हमारे देवता ने भेजा हो। एक तीर में नहीं थे, दो ही ने एक तीर में बोलो एंड करो मुक्का ना मार वो एक तो जमुआ ना बारिश करो तीर नहीं चलाना होता, पता मीठे नहीं चलाना ना पुलिस की चलाना होता। आपको एक तीर में करो तो सही, तब नहीं करना होता है। क्यों फौजी करो 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 एक तीर में करो सही। ओए अमर उसका तो बोल के लिए कौन से वाले मैडम एक तीर में पुरस्कार है। और जैसी बाइबल में लिखा थैंक यू, और जैसी वो क्या खुदाने का ये जाएगा मछली के पेट से, कलाम की मुनादी करेगा मेरी और बताएगा मेरा और दसेगा मेरा और आखेगा यहोवा पाक ने मुझे भेजा है। वो लोग तौबा करेंगे। और बाइबल में लिखा है और जब यूना जाता, ये यूना भी जाकर कहता है, यूना 3 दिन फिरता रहा। कितने दिन? क्या कहता रहा? तौबा करो नहीं तो नैनवा 40 रोज के बाद ठीक ठाक रहेगा। भाई बोलन पिछले लाना बोलन में पीछे भी आ जाना। बर्बाद किया जाएगा। नैनवा दे बादशाह को खबर पहुंची, उन्हें क्या कालू दे खोते ने पट्ठे पाने बंद कर दो। उन्हें क्या पाई अच्छी दिया गाड़ियां भी जो बंद कर दो। कहा कोई बाइबल ने कहा हवान इंसान कोई नहीं चखेगा। सुन लीजिए गल, उन्हें क्या जानवर भी रोजा रखे, इतने साड़ा ब्लड प्रेशर ही नहीं खलोंदा, मेरी जान खा पी मोटी हो है। लेकिन जानवर हवान सब रोजे में आ जाए, जब रोजे में आ जाएंगे सब डांट ले क्योंकि रोजा खासारी का मतलब है और नफ्स कशी का मतलब है। और रोजा जो है आज
मुनकता हो गया है, खुदा नहीं सुनता। अब रोजे में ठहर जाए, और जब रोजे में ठहर जाएंगे, यही खुदा कहता था 40 दिन के बाद बर्बाद किया जाएगा। और यूना बाहर बैठ गया, कहता मैं देखता हूं कैसे ये सड़ते गलते मरते हैं। बाइबल में लिखा जब आवाज आई, भागते हुए गए, वो यूना जब भागता जाता, मैं ना होने को चाहे ना साड़ी को ऐन नंगे तान शू शू करदा पर जाए, बर्बाद की जाएगी कॉलोनी, बर्बाद की जाएगी। हर एक ना बंदा फड़ो गेड़ा, बंदा फड़ो भजदा 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 पतली कॉलोनी टैडी वाली बढ़ गया, कोथे वाक्यो हो बर्बाद किया जाएगा। लोग कहेंगे बंदा कौन है ये बंदा? अगर उसके पास बाइबल हो, कलाम हो, हम समझेंगे पादरी है। हालेलुया। हमारे मछली से नहीं आया, खुदा से आया। आमीन। तो बाइबल में लिखा जब वहां जाता है तो उन्होंने कहा जनाब, वो सब राख में बैठ गए। फिर कद्दू दी वेलदा बदा खुदा ने उगाई भी, सिखा भी दी। बैठा रहा, इतना गम हुआ, इतना दुख हुआ। मैं आपको आयत ऊपर जाकर बताऊंगा, खुदा कभी हमें हलाक नहीं करना चाहता, वो चाहता है हम सेफ हो, हम बच जाए। बाइबल में लिखा है, खुदा ने कहा याद कर क्योंकि उसने तौबा कर ली है। आमीन। आमीन छोटा, आमीन ऊंचा बोलो, आमीन छोटा। लिखा है जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, खुदा ने उन्होंने हालत देखी, सुबह सुबह तगड़े परोठे खांदे ने। खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से पास है। अगर आज रवश है उससे लकीर वाले, हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे। आमीन। जब आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे, पर इब्लीस की जरूरत नहीं क्रॉस कर जाए। आमीन। उसकी जरूरत नहीं है आपके कैसे किए क्रॉस करे। आमीन। लिखा है और अपनी बुरी रवश से बास आए तो वो उस पर असाब जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था पास आया और उसे नाजिल ना किया। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बेटी, अगर आप रोजे में हैं तो आसमान आपके लिए खुलने वाला है। रोजा सही रखे हो, समझ गए? रोजा ब्याह शादी का ना रखे है, रोजा उसकी हजूरी का रखा हो। आमीन। दिंगा रोजा नहीं उन्हें पसंद बाजी, उसको वो रोजा पसंद है जो खालिस है। यह की किताब उसका 2 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, सुनो। लेकिन खुदावन लिखा है, फरमाता है अभी पूरे दिल से और रोजा रख कारे गिरियो सारी मातिम करते मेरी तरफ रसूल आओ, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके, दिलों को। खुदा कहते हैं कपड़े तो तुमने ऐसे करना ही है, लेकिन तुम्हारे दिल चाक हो, साफ हो, शफाफ हो, आला हो, मेरी बादशाही के मुताबिक हो, मेरे आइन के मुताबिक हो, मेरे कानून के मुताबिक हो। और फिर लिखा है खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो। रोजा सारा दिन सोते रहना, मैं दस्या सी रोजा उसकी हजूरी में बैठकर प्रार्थना करना, दुआ करना, हम के गीत गाना। नहीं तो सारा दिन मशीन, मैं तो मशीन भी लाई सी, मैं रोजा भी देखे, समझ गए? लेकिन क्या काम करना है? वर्शिप करनी। 1 हफ्ता पहले करो तैयारियां रोजे की। जो लोग पहले तैयारी करते वो जंग, वो कभी भी सिपाही जंग नहीं हारता, जो खुद तैयारी करके पहले स्टार्ट होता है। जो आपकी जंग इब्लीस के साथ था। लेकिन बाइबल क्या कहती है? हालेलुया, हालेलुया। छोटा आया ऐसे है कि यशायाह की किताब तो उसका पहला बाब उसकी 16वीं में लिखा है अपने आप को धो। क्या बात है? कपड़े नहीं धोने, सिर्फ दिल को चाक करना है। अपने आप को चंगी तरह धो दे। आप हो ना क्यों भी मेरी का सफाई, आप क्यों पादी की सफाई करी है चंगी तरह अगे बोलो ना, अपनी ना क्यों वो साड़ी तक बथेरी होंगी। चंगी तरह मेरी कारे, बैठो बैठो, चंगी तरह मेरी कारे मैनू कर तू पाक साफ बख्शते सब। हाय 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 हाय, क्या बात कहता है? अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। लिखा बात फेरी से पास हो, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों के फरियाद ऐसा रस्सी करो, बेवाओं के हामी हो।
खुदा कहता है अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारा रोजा मेरी हजूरी में मकबूल हो, फिर एक काम करो, मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदावन के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा। यही है रोजा रखना और खताकारी और इकरार करना, यही एतराफ है, इसी का नाम इतराफ है। आमीन। इसी का नाम इतराफ है। इसी का मतलब एतराफ का मतलब नहीं तो तुझी जो रोजे नहीं करना है। और भाई वो हर वक्त हमें बख्शने की कुदरत रखता है। आमीन। वो हर रोज हमें तौबा की तौफीक देता है, हम उसकी हसूरी रहे। और जब आप रोजे में होते हैं, जब आप ऐसा है गम की हालत में होते हैं, जब आप अपने घुटने देखे होते हैं और जब आप ये कहते हैं मैं नापाक हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ और मैं ऐसा, फिर खुदा अपना हाथ रख कर कहता है मैं मर गया था अब जिंदा हो और अब तो लबाद जिंदा रहूंगा और क्या तेरे गुनाह माफ। लेकिन रोजे में ठहरे हो, सुबह 3 परोठे खा के तो उंगलियां ऐसे नहीं। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से बल्कि दिन रात तुझे उसी का। फिर खुदा कहता है अगर तूने इकरार किया फिर मैं हाजिर हूं बेटे, बोल क्या चाहिए। आमीन। आमीन छोटा है, लिखा है। खुदा कहता अपने आप को धो, अपने आप को और पाक और साफ करो। सिर्फ रोज़ियां दे दिन च नहीं भी 40 दिन ही पाक रहना है, तो बाकी गंदे रहना, सारा साल ही पाक रहना है। हालेलुया। फिर यही कहना चंगी तरह तो दे मेरी कार। आप बोलो और आप ना बोलो चंगी तरह मेरी कार मैनू कर तू पाक साफ बख्शते सब। जब आप रोजे में ये लफ्ज कहते हैं ना, खुदा आपको लव यू कहता है। खुदा आपसे प्यार करके फिर आसमान से नीचे आता, पर जिस मोहल्ले से गुजरता है, जिस गली से गुजरता है, जिस परिवार से गुजरता है, मौज से मिरेकल बरकता शिफा सब कुछ जारी हो जाता। क्योंकि लिखा है, बाइबल बताती है ईमाल की किताब के अंदर, तौबा करो ताकि खुदा की तरफ से ताजगी के दिन आए। जब तौबा नहीं करनी, ऐसा है कि यू टर्न नहीं लेना, तो आपको कभी जो है वो सफर का पता नहीं चलेगा। आज ऐसा है यू टर्न ले ले, किसकी तरफ? यीशु मसीह की तरफ, होली स्पिरिट की तरफ। हालेलुया। सब कदमों पे खड़े हो जाएंगे और नॉन्टिंग ऑयल